I hope you all are keeping well and are safe at your homes. So, chalo, let's start with the types of leadership. First, I have already discussed the concept of leadership as well as its importance in the class. So let's just recap that what is leadership. The leadership is the process of influencing the behavior of a follower by guiding him, by instructing him, by showing him the right direction, by motivating him, by fulfilling his needs, either their personal needs or the organizational needs, or by helping them in by helping them in coping up with the changes that an organization faces in a day to day in the day to day their business activities. Also, the a leader needs to know that he should develop a healthy and a interpersonal relationship along with his follower, because if he'll do that, only then a follower will will walk on the path that is being shown by a leader. Because if a leader will demotivate a follower, then the follower will not only listen to him, but ultimately what will be the effect to the organization, that the organizational objective will not be completed. So a leader needs to establish a personal, a healthy relationship along with the followers. Okay, so this is just the brief that I have given, that what is leadership and what are the characteristics of leadership, that what does a leader do. So it just motivate them, it guides them, he instructs his followers, he helps them in coping up with the changes that a business organization faces, and etc. Okay, so let's discuss the types of leadership. We have three types of leadership. First is autocratic or authoritative leadership, second is democratic or participative leadership, and third is free rein leadership. So first we have is autocratic or authoritative. Now the word authoritative itself explains. See, I hope that you all are able to see the screen. In that, I am showing the first type of leadership, that is autocratic. Okay, so authoritative. The word authoritative itself explains that ये कुछ अथॉरिटी से रिलेटेड है, राइट, अथॉरिटी से ही बना है अथॉरिटेटिव। तो इससे नाम से हमें इतना समझ आ गया कि इसके अंदर कुछ ना कुछ अथॉरिटी से रिलेटेड होगा, कि या तो अथॉरिटी दी जा रही है फॉलोवर को, या नहीं दी जा रही है, डेलीगेट करी जा रही है, नहीं करी जा रही है। इतना हम नाम से समझ गए कि इसके अंदर कुछ अथॉरिटी से रिलेटेड है। नो व्हाट इज़ दिस? सी वी हैव डिवाइडेड द लीडरशिप इनटू थ्री पार्ट्स, यानी कि जो लीडर है उसको हम तीन तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं कि लीडर कैसा होता है। ये जो टाइप्स ऑफ लीडरशिप है, इसका मतलब ये है कि लीडर कैसा हो सकता है। सो पहली टाइप की जो लीडरशिप है, दैट इज ऑटोक्रेटिक। सो एन ऑटोक्रेटिक लीडर एक्सरसाइजेस कंप्लीट कंट्रोल ओवर द सबॉर्डिनेट्स। इसका मतलब ये है कि जो ऑटोक्रेटिक लीडर जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं, he has the full and the complete control over his subordinates और over his followers। यानी कि जो ऑटोक्रेटिक लीडर होगा उसका पूरा से पूरी तरीके से वो क्या करेगा, कंट्रोल रखेगा अपने सबॉर्डिनेट्स पर। ही सेंट्रलाइज पावर इन हिमसेल्फ एंड टेक्स ऑल द डिसीजंस विदाउट कंसल्टिंग हिज सबॉर्डिनेट्स। कि जो लीडर होगा वो सारी की सारी पावर, अब पावर कैसे हो सकती है, पावर हो सकती है डिसीजंस लेने की पावर, पावर हो सकती है कि अथॉरिटी अपनी ट्रांसफ़र करने की पावर। तो ये जितनी भी जो भी पावर है वो सेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है कि सेंट्रलाइज किससे बना है, सेंटर से। यानी कि सारे का सारा जो होल्ड होगा पावर को, वो किसके पास होगा, वो सिर्फ और सिर्फ लीडर के पास होगा। तो ही सेंट्रलाइज पावर इन हिमसेल्फ एंड टेक्स ऑल द डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग हिज फॉलोअर्स, हिज सबॉर्डिनेट्स। तो वो सारे के सारे डिसीजंस लेगा, वो अपने सबॉर्डिनेट से कंसल्ट नहीं करेगा, वो सारे डिसीजंस अपने खुद के बिहाफ पर लेगा, अपने अकॉर्डिंग लेगा। ही डज़ नॉट डेलीगेट अथॉरिटी। वो अपनी जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजंस। यानी कि डेलीगेट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अ फुल टॉपिक ऑन डेलीगेट, दैट इज डेलीगेशन। डेलीगेट का मतलब होता है कि अपनी पावर, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड करना फ्रॉम द दैट अ सुपीरियर डज टू हिज इमीडिएट सबॉर्डिनेट। एंड आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू स्कूल ओनली, सो आई होप दैट डेलीगेट वर्ड इज बीइंग क्लियर टू you all. So uh, uh, uh,
अ लीडर डज नॉट डेलीगेट हिज अथॉरिटी, यानी कि वो अपने अथॉरिटी जो डिसीजंस लेने की जो पावर है वो अपने फॉलोअर्स को नहीं देता है, कि जितने भी डिसीजंस होंगे रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन मैटर्स लाइक एनीथिंग, वट एवर काइंड ऑफ डिसीजंस आर बीन टेकन इन द ऑर्गेनाइजेशन, all the decisions will be taken by the leader himself, and he will not consult that decisions with his subordinates. The leader gives order and expects the subordinates to follow him unquestioningly. और लीडर अपने सबॉर्डिनेट से क्या एक्सपेक्ट करता है? लीडर ये एक्सपेक्ट करता है कि वो जो भी अपने सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर दे रहा है, मेरा सबॉर्डिनेट मुझे विदाउट क्वेश्चंस करे, मुझे बस फॉलो करे, यानी कि वो चुपचाप से मेरा जो भी फैसला है, मेरा जो भी ऑर्डर है उसको सुने, उसको एक्सेप्ट करे, एंड ही शुड फॉलो दैट ऑर्डर, दैट रूल्स गिवन बाय हिम अनक्वेश्चनिंगली, यानी कि वो लीडर से बिना कुछ सवाल जवाब पूछे बिल्कुल चुपचाप से वो सारे काम जो है वो करे. He gives rewards and put penalties to direct the subordinates. और वो क्या करता है, वो इस काम के लिए रिवॉर्ड्स भी देगा अपने सबॉर्डिनेट्स को, और अपने पेनल्टीज़ भी उसके ऊपर डालेगा. पेनल्टीज़ कब डालेगा? जब वो जो उसका फॉलोवर है, अब उसके जो रूल्स या रेगुलेशंस या जो भी डिसीजंस उसने लिए हैं वो उसको फॉलो नहीं कर रहा है. रिवॉर्ड्स कब देगा जो लीडर होगा? रिवॉर्ड्स तब देगा जब वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को टाइमली कंप्लीट कर रहा है. ओके, सो ही गिव्स द रिवॉर्ड्स एंड पुट पेनल्टीज टू डायरेक्ट द सबॉर्डिनेट्स. डायरेक्ट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि उनको दिशा दिखाने के लिए, उनको सही रास्ता दिखाने के लिए उनको रिवॉर्ड्स भी देगा लीडर अपने फॉलोअर को, और उनके ऊपर पेनल्टीज भी पुट करेगा. ओके, सो द मेरिट्स. अब इसके मेरिट्स का मतलब क्या होता है? द बेनिफिट्स. तो ऑब्वियसली बेनिफिट्स के क्या होंगे कि हमें पता लग गया कि अब जो लीडर है वो अपने फॉलोवर से कुछ भी कंसल्ट नहीं कर रहा है, उसको जो भी इन्फॉर्मेशन पास करनी अपने आप डिसीजंस ले रहा है और सीधा वो इन्फॉर्मेशन पास कर रहा है. तो क्या उसमें डिसीजंस लेने में टाइम लगेगा? No. So that is why we are saying that the first merit, that means the first advantage of the autocratic leadership is that there is a quick decision making. उसमें जल्दी से decision making होती है. Second is provide strong motivation and dedication to the leader to dictate. What is this? To dictate terms. Okay, so that a leader provides the motivation and the dedication that the मतलब कि दिस टाइप ऑफ लीडरशिप प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन मिलती है फॉलोअर्स को, एंड डेडिकेशन मिलती है काम करने के लिए. टू डिक्टेट टर्म्स. डिक्टेट हमारा बना है डिक्टेटरशिप से. डिक्टेटरशिप का मतलब होता है कि तानाशाही. सो इससे होता क्या है कि